Hello everyone. So now we will discuss about combination of resistances. Now resistance can be combined in two ways. Can be combined in two ways. The first one is series and the second one is parallel. We will discuss them one by one. Let's take up series first. So a typical series connection looks like this. So this connects these two resistances then are said to be connected in series. So can I say when two resistances are said to be connected in series, I can say they are connected end to end. And second, so if I current goes like this I current will complete this entire circuit. So can I say equal current will flow through both of the resistances? So equal current flows through them. Equal current flows through them. Then they are said to be connected in series. Correct? Okay. Suppose I want to find out its equivalent resistance. What does equivalent resistance means? So suppose I'm saying कि भाई ठीक है, this is the circuit. हम इन दोनों जो सीरीज में लगा हुआ है और इस सर्किट से आई करंट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, हम इसको एक ऐसे सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना चाहते हैं सच दैट कि वो भी इस सर्किट से आई करंट ही विड्रॉ करे, है ना, वो भी उस सर्किट से आई करंट ही विड्रॉ करे. सो कैन आई से पहले वाले के अक्रॉस ड्रॉप V1 होगा, पोटेंशियल ड्रॉप, सेकंड वाले के अक्रॉस V2 होगा. ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि V1, सो कैन आई से ओम्स लॉ से पहले वाले रेजिस्टर के लिए V1 विल बी IR1 और सेकंड वाले के लिए V2 विल बी IR2. V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2. तो क्या हम V को IR1 प्लस R2 लिख सकते हैं? अगर इसके लिए देखोगे तो क्या हम बोल सकते हैं इसके अक्रॉस ड्रॉप V होगा, तो V विल बी इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट. इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो. अगर आप 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, इफ यू कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कैन आई से R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2. दिस रिजल्ट विल होल्ड ट्रू इफ यू हैव n रेजिस्टेंसेस ऑल्सो, है ना. अगर ऐसे करके n रेजिस्टेंस तक भी है जो कि एंड टू एंड जुड़े हुए हैं, तो भी ये रिजल्ट वैलिड होगा. उस समय R इक्विवेलेंट हो जाएगा टिल R, राइट. You should also note that R equivalent is greater than any of the individual resistor or resistance, right.
जो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू होगा किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के वैल्यू से ज्यादा होगा। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डील विथ सीरीज कनेक्शन में, ओके। Now let's talk about resistances connected in parallel. So a typical connection in parallel looks like this. This is a typical parallel connection. So can I say when two resistances are connected in parallel, number one, they are, or you can say two or more also, they are connected between same 2 points. And second, potential difference across them is equal. Potential difference across them is equal. So these two resistances then are said to be connected in parallel. Now suppose I want to find out R equivalent of this circuit also. So what does it mean? Say I have this and say this is driving I current from the circuit. So I will now replace it with a single resistor. But remember, that should also drive I current from the circuit. So can I say potential drop across this is V. Potential drop across this is V. Say current through this is I1. Current through this is I2. From Ohm's law, for R1 can I say I1 will be V by R1. I2 will be V by R2. And also it's quite logical कि यहीं पे I आके दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो I will be equal to I1 plus I2. So can I say I will be equal to V by R1 plus V by R2. So this is equation 1. अगर हम इक्विवेलेंट वाले इक्वेशन को देखें तो वहां पे हम I का वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V है, तो ओम्स लॉ लगाएंगे अगर R इक्विवेलेंट पे, तो हम I को लिख सकते हैं V by R इक्विवेलेंट. दिस इज इक्वेशन 2. If I compare 1 and 2, I can say 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. This is the formula when two resistances are connected in parallel. You can find the equivalent one. But remember, this can be extended to n number of resistances then. So if I have resistances like this, I can write one by R3, 1 by Rn. This is equal to 1 by R equivalent. Important. Note, R equivalent is smaller than any of the individual resistance. ठीक है, any of the individual resistance. So this is how you are going to approach parallel connection. So I hope series connection and parallel connection is clear to everyone, right?
कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये हम लोगों को क्लियर होना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग इसको और अच्छे से समझते हैं। फाइन, लेट्स टेक अप दिस क्वेश्चन देन। आई हैव टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो ये दोनों पैरेलल में, सो कहने से अगर हम इस बॉक्स को सॉल्व करना चाहें तो इस बॉक्स का इक्विवेलेंट ये होगा। यहां से आपको आर इक्विवेलेंट का वैल्यू मिल जाएगा। इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट दिस एज 2 ओम। तो हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के ऐसा लिख सकते हैं। अब इन दोनों को देखोगे तो ये दोनों सीरीज में, तो अगर सीरीज में है तो हम इन दोनों का आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं 2 ओम प्लस 3 ओम, so this is 5 ohm, and hence from here we got to here and from here we will get to this. This is 5 ohms, right? Okay, let's now attempt this particular question. Can I say current through this is I, तो ओम्स लॉ से इसके थ्रू ड्रॉप होगा 5i, इसके थ्रू होगा i, इसके थ्रू होगा 6i। टोटल ड्रॉप ऐड करो 5i प्लस i प्लस 6i, दैट विल बी 12i, और वो पूरा मिला के इस 6 वोल्ट्स के बराबर होना चाहिए। तो क्या इसे i का वैल्यू आ जाएगा हाफ, और सब SI में है तो एम्पियर्स। अब अगर हमको पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम चाहिए तो वो हम लिखेंगे I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम। सो कैन आई से पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 6 ओम या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम इज I इंटू R। वोल्ट्स में आंसर आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 3 वोल्ट्स। ठीक है, लेट्स डिस्कस दिस नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखो, आपको क्वेश्चन में बताया गया है रेजिस्टर ए एंड बी हैव सेम रेजिस्टेंसेस, तो इनका रेजिस्टेंस सेम है, दोनों को आर और आर मान लेते हैं। इसके अक्रॉस भी ड्रॉप पोटेंशियल डिफरेंस वी है, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस वी है। तो कहने से इसके थ्रू करंट जो होगा आई ए और इसके थ्रू करंट जो होगा आई बी, तो हम आई ए को लिख सकते हैं वी बाई आर, आई बी को लिख सकते हैं वी बाई आर, करेक्ट। और यहाँ से एकदम क्लैरिटी होना चाहिए हम लोगों को कि यही आई करंट यहाँ पे पहुंच के दोनों में डिवाइड हो रहा है, तो आई ए और आई बी को ऐड करके आई मिलना चाहिए। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? तो आई ए और आई बी को मिला के आई मिल गया। देखो आई ए और आई बी सेम है तो हम इसको 2IA भी लिख सकते हैं। यहाँ से आपको आई ए का वैल्यू मिल जाएगा I/2, और आई तो दिया ही हुआ है 6 एम्पियर, 6/2 विल बी 3 एम्पियर्स। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर देन। ओके, सो वी end this video here. We'll meet in the next video then. Thank you everyone.